दिन की यात्रा पर अमेरिका गए राहुल गांधी ने कल वॉशिंगटन में मीडिया से बातचीत में फिर कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने एक बार फिर 2014 में आए राजनीतिक बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई का जिक्र किया और चाइना मॉडल की बात कही। लेकिन सबसे अहम बात आरक्षण की हुई, जिस पर एक दिन पहले उनके बयान पर विवाद हो गया था। उन्होंने कहा कि अगर भारत में स्थिति बेहतर हुई तो आरक्षण खत्म कर देंगे। उनके इस बयान पर घमासान छिड़ने के बाद राहुल गांधी ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। We feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. But do you think they should? लेकिन राहुल गांधी की सफाई के बावजूद उन पर हमले नहीं रुके। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी का बयान गुमराह करने वाला है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में कार्य कर लेते। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ना तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और ना ही एससी/एसटी आरक्षण को सही से लागू किया। तो आरक्षण पर राहुल गांधी का बयान गुमराह करने वाला है। मायावती को ये बयान रास नहीं आ रहा है। कल भी मायावती ने इसमें टिप्पणी की थी। आरक्षण सीमा 50% बढ़ाने की बात का छलावा बता रही है मायावती और कह रही है कि नियत साफ होती तो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा उन्होंने कर लिया होता। कांग्रेस ने ना तो ओबीसी आरक्षण लागू किया, ना ही एससी/एसटी आरक्षण लागू किया, और अब राहुल गांधी विदेश में इस तरह के बयान दे रहे हैं। जब सत्ता में थे, पदोन्नति में एससी/एसटी के आरक्षण का बिल पास नहीं होने दिया था। जाहिर है राहुल गांधी के बयान पर घमासान जारी है। वैसे अभी भी और भी प्रतिक्रियाएं आएंगी क्योंकि राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि 2014 में भारतीय राजनीति में नाटकीय बदलाव आए, लोकतांत्रिक संस्थानों की बुनियाद पर हमला हुआ, विपक्षी नेता के रूप में भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। I wouldn't call it a transformation. A journey? Yeah, a journey. I think politics in India changed very dramatically in 2014. We entered a phase of politics that we haven't seen in India before. Aggressive, attacking the foundations of our democratic structure. And so it's a tough fight. It's been a good fight. And personally, of course, it has changed me. I wouldn't have ever imagined before 2014, if you had come to me and said, look, you walk across from Kanyakumari to Kashmir, I would have just laughed at you. And I would have said, that's ridiculous. But that was the only way left for the opposition in our country. वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस वक्त वैचारिक लड़ाई चल रही है। एक तरफ बीजेपी और सहयोगी पार्टियां हैं और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। I mean, it's an extension of what I did earlier. There's an ideological war taking place in India between the Congress and our partners and the BJP and the RSS. They are two completely different visions of India. We believe in a plural vision, a vision where everybody has a right to thrive. All imaginations are free to roam. An India where you're not persecuted because of what religion you believe in or what community you come from or which language you speak, versus a much harsher, centralizing,
vision. And so that's the landscape, and then we fight on that landscape, defend India's institutions, defend the weaker sections in India, defend the lower castes, defend the tribals, minorities, defend poor people. And after the yatra, I feel try to become the voice of as many people as you can. और पिछले 3 दिन में राहुल गांधी ने जो 10 प्रमुख बातें कही हैं वो आपको दिखा देते हैं। 2014 में बेहद नाटकीय रूप से भारत में राजनीति बदल गई, ये उन्होंने अमेरिका में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर हमला हुआ है और यहां की राजनीति बदल चुकी है। चुनावी नतीजे के बाद लोगों के मन से बीजेपी का डर निकल गया है, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है। अब बीजेपी और पीएम मोदी की कोई चिंता नहीं करता है। भारत में स्थिति बेहतर होगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये भी राहुल गांधी ने वहां बयान दिया। मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया, हम आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही लड़ाई इस बात की भी है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी बांधने की इजाजत दी जाएगी। महिलाओं को घरों में सीमित रखना चाहती है बीजेपी और आरएसएस, ये भी राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर बयान दिया। साथ ही निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 सीट के आसपास ही पहुंच पाती। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं पीएम मोदी से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन उनके नजरिए से सहमत नहीं हूं। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, पहले तो आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी गिर गए, और जाहिर सी बात है जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो बातें क्यों नहीं लागू की गई जो आज राहुल गांधी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अमेरिका में जाकर कह रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि इस वक्त उनकी वैचारिक लड़ाई है यहां की सरकार से। तो एक तरफ बीजेपी और सहयोगी पार्टियां हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है। देखिए नेहा, जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं वो प्रमुख तौर पर 3 चीजों पर हमला करते हैं। एक तो वो भारत सरकार की कूटनीति पर हमला करते हैं, जिसमें वो चाइना की बात करते हैं। इसके अलावा वो जो राजनीति है मौजूदा बीजेपी की उस पर हमला करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वैचारिक लड़ाई चल रही है, जो संस्थान है उनको कमजोर किया जा रहा है। और तीसरा वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आपने पूछा कि ये तमाम बातें जो वो राहुल गांधी अब कर रहे हैं उन्होंने तब क्यों नहीं लागू की जब उनकी सरकार थी। देखिए, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कांग्रेस ऑफिस में चल रही थी और एक सवाल पूछा गया था कि अब आप जो महिला रिजर्वेशन है उसमें ओबीसी की डिमांड कर रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं इसको लागू किया। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि ये मेरी गलती है। तो कई चीजों में राहुल गांधी ये मानते हैं कि उनकी राजनीति में बदलाव आया है 2014 के बाद से। उन्होंने कई चीजें कई प्लेटफॉर्म्स पर कहते रहे हैं कि उन्होंने महसूस की हैं कि जब उनकी सरकार थी वो की जानी चाहिए थी कि वो नहीं हो पाई। और ऐसे में अब जब वो विपक्ष के अंदर हैं वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात हो, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी अब बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जब से नतीजे आए हैं 2024 के, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि अब जो मौजूदा राजनीति है वो एक फिसलती रेत की तरह है बीजेपी के लिए, और आने वाला जो समय है उसमें बीजेपी को घेरना और आसान होगा। और इसीलिए जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं, आपने नोट किया होगा, वो हमेशा इस बात को लेकर सरकार की आलोचना करते हैं कि यहाँ पर डिसेंट का स्पेस नहीं है, यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, एसटीज़ हैं, उन पर हमले बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को वो इसलिए उठाते हैं ताकि सरकार को यहाँ पर घेरा जा सके। चाइना की भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 4000 सिपाही डोकलाम में बैठे हैं, लद्दाख के अंदर बैठे हैं, ये एक डिजास्टर है, इससे कम कुछ नहीं है। ये तमाम चीजों को लेकर वो इसलिए अपनी बात रखते हैं कि उनको लगता है कि जब वो बाहर जाते हैं तो ना सिर्फ उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है बल्कि उसका रेपिटेशन भारत के अंदर भी ज्यादा होता है। तो ऐसे में उनकी बात दूर तक पहुंचती है। और अब आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों को लेकर भारत में आने के बाद भी सरकार को घेरते रहेंगे। ठीक है, और चीन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुना देते हैं कि चीन मॉडल जो है विकास का वो दरअसल सही नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। For a country like India to simply say that look, we are going to ignore manufacturing and we're only going to run a services economy means you can't give employment to your people, right? So one of the things I'm interested in is thinking about the act of production, also called manufacturing. Today, if you look at what most American companies do, look at what most
Indian companies, most European countries do. We don't want to do it like the Chinese are doing it. We don't want to do it in an environment which is non-democratic, which is not liberal. तो अमेरिका में राहुल गांधी बयान दे रहे हैं और भारत में उनके बयान पर घमासान मचा हुआ है। सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है राहुल गांधी के सिख वाले बयान पर। अमेरिका के वर्जीनिया में राहुल गांधी ने कहा कि इस समय लड़ाई इस बात को लेकर भी है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाए या फिर नहीं। आज तक से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखी आपत्ति जताई। कुछ फॉल्स नैरेटिव्स उनके पास जाते हैं, पता नहीं उनको किसी ने कुछ चीज कही है, पर आई हैव नेवर कम अक्रॉस। मैं 39 इयर्स आई वाज इन द फॉरेन सर्विस, उसके बाद में बाहर रहा हूं, अभी भी मैं आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली। कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कि मेरे को पगड़ी पहनने में कोई दिक्कत आती है या आई फील अ सेंस ऑफ एंजाइटी। यस, एक समय था उनके श्री राजीव गांधी के टाइम पे व्हेन 3000 पीपल वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड इन 1984। उस समय सरदारों को थी एंजाइटी। कई लोगों ने अपने पगड़ी उतार के they got shaved off, got a clean shaven look because they were scared. Others have done it, they've taken off the turban, may be different, but the reasons for that may be different. But I don't think any Sikh has ever felt any sense of anxiety on that. And I've seen this not just in India, through the length and breadth of India, but दुनिया भर में कहीं भी ऐसा हमने सुना ही नहीं है कभी। आरएसएस, बीजेपी दोनों मिलके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं और धार्मिक उन्माद फैला रहा है। इसमें जो राहुल गांधी ने कहा है वो यथार्थ है, सच्चाई है। एक चीज समझ ले लो, भाजपा के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त शायद ही कोई हो।